فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن العظيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اس اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اولاد آدم کو نعمت اسلام سے نوازا. کروڑوں درود و سلام کو اس آخری نبی پر جس نے اپنی پوری زندگی امت محمدیہ کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے میں گزار دی. دین اسلام اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے انسان کو جو دنیاوی زندگی عطا کی ہے، اسلام جیسی نعمت جو عطا کی ہے، اس نعمت کے بدلے اللہ نے ان سے کچھ چاہا ہے. اللہ نے انسان کی زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے. اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سورۃ الملک آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ ہم نے زندگی بنائی، ہم نے موت کو بنایا صرف اس لیے تاکہ ہم تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے وہ کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے. اللہ نے جو زندگی عطا کی اس کا ایک مقصد رکھا ہے. انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، انسان کی زندگی کا ہر گھنٹہ، ہر منٹ جو ہے اس کی یہ آزمائش ہے، اس کا ایک امتحان ہے. اس کا ہر عمل یا تو اس کو جنت کے قریب کرتا ہے یا تو اس کو جہنم کے قریب کرتا ہے. وہ انسان جو جنت کی چاہت رکھتا ہے، وہ انسان جو جہنم سے آزادی چاہتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری سے دور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے سرکشی نہیں کر سکتا، اسلام کی تعلیمات سے منہ نہیں موڑ سکتا. جس بندے کے دل میں جنت کی چاہت ہو، جس بندے کے دل میں جہنم سے آزادی کی خواہش ہو، جو اپنی آخرت کو سدھارنا چاہتا ہو، وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں، وہ اپنی اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نیک اعمال بڑے ہو یا چھوٹے ہو، وہ نیک اعمال بہت زیادہ اہم ہو یا بہت زیادہ معمولی ہو، انسان ہر عمل کو، بلکہ جو مومن ہے وہ ہر عمل کو جو ہے اپنے جنت کو سنوارنے میں، جنت کو بنانے میں جو ہے استعمال کرتا ہے. دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں کی چاہت رکھتا ہے. آپ دیکھو گے کئی سارے انسان ہو گئے جو مال کی چاہت رکھتے ہیں، دولت کی چاہت رکھتے ہیں، شہرت کی چاہت رکھتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو جنت کی چاہت رکھتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی چاہت رکھتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا، اور اس کے لیے وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نیک اعمال کو جو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ نیک اعمال بہت زیادہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، وہ اپنی زندگی میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت وہ معاملات سے اس کا تعلق ہو، عبادات سے اس کا تعلق ہو، معاشرات سے اس کا تعلق ہو، ہر میدان میں، ہر عمل میں وہ
अपने अल्लाह की चाहत को, अपने रब की रजा को अपने सामने रखता है। मेरे भाई, जो नेकियां है, जो नेक आमाल है, ये जो है आखिरत की कामयाबी का जरिया है। और जो आखिरत में आप देखोगे कि इंसान की जो चाहत होगी वो एक नेकी के लिए, सिर्फ एक नेकी की खातिर वो अपने पूरे खानदान वालों को, अपने पूरे कुंबे वालों को, अपने पूरी माल दौलत को, बल्कि अल्लाह ने कहा कि क्या अगर तुझे पूरी दुनिया अगर दे दी जाए और उस पूरी दुनिया के बदले अगर जो तुझे जहन्नम से आजादी मिले तो क्या तुझे उन पूरी दुनिया को देना चाहेगा? इंसान कहेगा कि हाँ मेरे अल्लाह, अगर मुझे जहन्नम से आजादी के बदले अपने माँ बाप को कुर्बान करना पड़े, अपने बेटों को कुर्बान करना पड़े, अपने रिश्तेदारी को कुर्बान करना पड़े, अपने माल दौलत को कुर्बान करना पड़े, मैं सारी चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जहन्नम से आजादी दिला दे, मुझे जो जहन्नम से छुटकारा दिला दे। वो एक नेकी के लिए तरसेगा। वो एक नेकी अगर उसके मीज़ान में अगर नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, वो दौड़ेगा, भागेगा, इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, हर एक के पास जब किसी भी तरीके से वो अपने नेकियों के पलड़े को जो है वो भारी करना चाहेगा, नेकियों को बढ़ाना चाहेगा। तो जो मोमिन होता है उसकी जिंदगी जो है वो नेकियों से भरपूर होती है। काफिर के मुकाबले में, दुनिया परस्त के मुकाबले में, दुनियादार इंसान के मुकाबले में नेक इंसान, मोमिन इंसान हमेशा नेकियों की चाहत रखता है। आज के इस दौर में, रियाकारी के दौर में, दिखलावे के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में आप देखोगे कि दो बड़े मसाइल हमारे सामने हैं। एक मसला तो वो है कि एक बहुत बड़ा तबका उम्मत का ऐसा है जो नेकियों से कोसों दूर है, नेक आमाल से, आमाल सालिहा से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो दीन से बेजार है, इस्लामी तालीमात से दूर है, इस्लाम की बातें सुनकर उसे चिढ़ होती है, इस्लाम की तालीमात सुनकर उसे कोफत होती है। वो नहीं चाहता कि अपने आप को इस्लाम की तालीमात में कैद कर डाले। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपने आप को मुसलमान तो कहता है, इस्लाम का मानने वाला तो कहता है, उसकी तालीमात पर अमल करने में, नेक आमाल करने में उसे बड़ी दुश्वारी पेश आती है। तो पहली चीज तो ये है, पहली मुश्किल तो ये है कि एक बहुत बड़ा तबका नेकियों के करने में, आमाल सालिहा को अंजाम देने में बहुत पीछे है। दूसरा मामला, दूसरा मसला ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों को अंजाम देते हैं, आमाल सालिहा की कसरत है, लेकिन कई सारे दूसरी ऐसी चीजें हैं जो उनके इस नेक आमाल को बर्बाद कर देती है। बहुत सारे दूसरे ऐसे आमाल हैं जो उसकी नेकियों को खत्म कर देते हैं। तो ये दो बड़े मसाइल हैं। सबसे पहला मसला कि हमें नेकियों की कसरत में आगे बढ़ना है। अब साहबे कराम को देखिए, अस्हाबे कराम की जिंदगी को पढ़िए, आप देखेंगे, आप जानेंगे कि उनके सामने अगर नेकियों की कोई सी भी बात हो, कैसी भी बात हो, छोटी हो या बड़ी हो, वो माल की कुर्बानी हो, वो जान की कुर्बानी हो, वो मेहमानों की ज़ियाफ़त से ताल्लुक हो, वो किसी भी किस्म की कुर्बानी, नेकी का कोई छोटा सा भी अमल अगर उनके सामने पेश करे, फौरन आगे बढ़ते झुकते कि मैं इस नेक अमल को अंजाम दूंगा, ये नेकी मेरे हिस्से में आनी चाहिए, ये नेक अमल मेरे हिस्से में आना चाहिए। अब उस्मान को देखिए, बेरे रोमा जो मदीना के अंदर जो कुआं था, अगर उसको जो है मक्का के अंदर जो कुआं था यहूदियों के उसमें था, उसको जो है यहूदियों के उसके ऊपर जो कब्जादारी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो कौन है जो इस कुएं को खरीद के जो मुसलमानों के लिए आजाद करा दे। हज़रत उस्मान ने उस कुएं को फौरन खरीद लिया था। ग़ज़वा तबूक का मौका देखिए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन की अपील की, अपने सहाबा कराम से मदद की अपील की, जिहाद के लिए निकलना है, बड़ा लश्कर तैयार करना है, लोगों के ताउन की जरूरत है, लोगों की मदद की जरूरत है। अबू बकर सिद्दीक जाते घर का सारा माल उठा कर लेकर आते हैं। अब तो उमर जाते हैं, उनकी ख्वाहिश थी इस मतलब कि आज तो अबू बकर को नेकियों के मामले में पीछे छोड़ दूंगा मैं, वो अपने घर का आधा माल लेकर आते हैं अल्लाह के नबी के कदमों में डालते मालूम पड़ता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर का पूरा माल लेकर आ गए। तो हज़रत उमर कहते हैं कि नेकियों के मामले में हम हज़रत अबू बकर को पीछे नहीं छोड़ सकते। नेकियों के मामले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो हमारे सहाबा किराम थे, हमारे असलाफ थे, वो नेकियों की चाहत में बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा जो है चाको चौबंद रहा करते थे, नेकियों का कोई मौका वो नहीं छोड़ा करते थे। तो दो मामला हमारे सामने कि हमें सबसे पहले जो है नेकियों की कसरत करनी चाहिए। नेक जो भी नेक अमाल हो, किसी से मुस्कुरा कर मिलना हो, किसी की कोई मदद करनी हो, किसी से आगे बढ़ के सलाम करना हो, कि दो लोगों के मामला को सुलझाना हो, झगड़े को खत्म करना हो, रास्ते से तकलीफ
को उसको हकीर नहीं जानना चाहिए। नेकी का कोई सा भी मौका मिले इंसान को आगे बढ़ के जो उसके ऊपर अमल करना चाहिए, उस नेकी को हासिल करने की चाहत रखनी चाहिए। अब इंसान जब नेकियों की कसरत में आगे बढ़ जाए उसको सेफ रखना, नेकी कमा लेना ये अच्छी बात है, उसको बचा कर रखना, उसको सेव करके रखना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया के मामले में देखिए एक इंसान बहुत सारा माल कमाता है, बहुत सारी दौलतें कमाता है, जितना कमाता है उतना उड़ा देता है, दुनिया उसे बेवकूफ कहती है, दुनिया उसे अक्लमंद नहीं जानती कि जितना कमाता है उतना उड़ा देता, कुछ भी बातें नहीं करता। कोई ऐसा इंसान अक्लमंद नहीं हो सकता। यहाँ नेकियां कमा रहा है, वहाँ अपने गुनाहों के जरिए नेकियों को बर्बाद कर रहा है। नेकियां कमाना जितना अहम है, नेकियों का हासिल करना जितना जरूरी है, उसको बचा कर रखना भी उतना ही जरूरी है। तो हमारे बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जो हमारी बहुत सारी नेकियों को जो खत्म कर देते हैं। बहुत सारे अमाल में से सबसे पहला अमल जो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, उस गुनाह के अल्लाह के नजदीक कोई माफी नहीं है। आप सब जानते हैं कि वो शिर्क का गुनाह है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ला यहबतन्ना अमलु लइन अशरकता ला यहबतन्ना अमलु। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद करके फरमाया कि अगर तुम भी जो है अगर शिर्क का इत्तेकाब करोगे तो तुम्हारे भी पिछले सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो शिर्क वो अमल है जो इंसान के सारे अमाल को बर्बाद कर देता है। एक इंसान 60 साल की जिंदगी गुजारता, 70 साल की जिंदगी गुजारता है, पूरी जिंदगी उसने अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारी है, हर नेकी के काम किए हैं, नमाजों की पाबंदी, तहज्जुद की पाबंदी, नवाफिल की पाबंदी, सदका व खैरात में सबसे आगे बढ़ा हुआ। आखिरी वक्त में मौत का वक्त करीब आता है, आखिरी वक्त में जो है वो कुफ्र का इत्तेकाब कर बैठता है, आखिरी वक्त में वो जो शिर्क कर बैठता है, उसके पूरी दुनिया की जो नेक अमाल के सारे अमाल जो उसके बर्बाद हो जाते हैं। तो शिर्क वो अमल है कि इंसान के सारे नेक अमाल को जो बर्बाद कर देता है। दूसरी वो बीमारी, दूसरी वो गलती, दूसरा वो गुनाह जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा आम हो चुका है, रियाकारी, दिखलावा, जिसे शिर्क असगर कहा गया है। खास तौर से आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, इस जो है मोबाइल के दौर में, इंटरनेट के दौर में, एक तो नेकियां करने वाले कम है, जो करते हैं वो दिखाते बहुत ज्यादा है। छोटा सी नेक अमल करेंगे, बताएंगे बहुत ज्यादा कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। रियाकारी इंसान के सारे अमाल को बर्बाद कर देती है। अब देखिए कि पिछले जमाने में ऐसे लोग थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात देखिए, अमीरुल मोमिनीन है, अपनी जगह के हाकिम है, अपने लोगों के सरदार है, इतने बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद, इतना बड़ा ओहदा संभालने के बावजूद जो है रात के अंधेरे में चुपके से निकलते हैं और फिर जो है बेवा की दुनिया में उसके लिए मदद करते हैं, उसके घर का सारा काम करके आते हैं। उम्मत को खबर दे रही है, उम्मत सो रही है, जो उम्मत का जो हाकिम है, उम्मत का जो सरदार है, वो चुपके से इखलास के साथ जो है वो एक बुढ़िया की मदद करके आता है। उस बुढ़िया को नहीं मालूम था कि कौन है जो रात में आके जो घर का सारा काम करके जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इंतकाल के बाद कहते हैं कि हाँ वो हज़रत को मालूम पड़ता है कि इस बंदे का इंतकाल हुआ, अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ। उस वक्त उसको मालूम पड़ता है कि जो शख्स उसके घर में आता था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। तो नेकियां छुपाई जानी चाहिए, नेकियों को बताना, बहुत ज्यादा शोहरत तलबी की जो ख्वाहिश रखना, बहुत ज्यादा रियाकारी करना, दिखावा करना, एक इंसान के उस अमल को जो बर्बाद कर देता है। मन से देखिए वो भी रातों को कष्ट किया करते थे, रातों को जो है अपनी करिया में बस्ती में निकला करते थे उम्र के हालात को जानने के लिए कि लोग किस हाल में है, लोगों को क्या हाल है, वो जानते थे, वो मालूम करते थे। जहाँ मालूम पड़ता है कभी इसको इस चीज की जरूरत है, खुद जाते, खुद सामान उठाते, अपनी पीठ पर लाते। वो 22 लाख रब्बा मील का हाकिम, वो इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा सरदार, शैतान जिससे डर के भागता था। उम्मतें जो है उसके जो है जुल्म करने से, उसके दौर में जुल्म करने से डरा करती थी। इतना बड़ा हाकिम जो है अपनी पीठ पर जो है अनाज की बोरियां लाता था, घर पे जाता, रसोई पे जाता, खाना बनाता और बच्चों को खिलाकर वापस आता। उम्मत को खबर नहीं, उम्मत सो रही है। आज हम छोटा सा मामूली सा अमल करते हैं, एक बंदा 100 रुपए खर्च करता है, फोटो खिंचाता है कि मैंने नेकी का बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो नेकियां जो रियाकारी है, जो दिखावा है, ये शिर्क असगर है और ये नेक अमाल को बर्बाद कर देता है। तीसरा बहुत बड़ी जो खराबी हमारे मामले में, हमारे माशरे में जो पाई जाती है, वो हुकूक की बात में ताल्लुक सी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक शख्स क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लाया जाएगा, बहुत सारे उसने
जो है नेक अमाल होंगे, उसने जो नमाजों की भी पाबंदी की होगी, उसने रोजे भी रखे होंगे, फराइज की भी पाबंदी है, नवाफिल की भी पाबंदी है, जितने नेक अमाल हो सकते हैं उसने उन सारे नेक अमाल को अंजाम दिया है। उन बहुत सारे नेक अमाल के साथ साथ सबसे अव्वल के नमाज की पाबंदी करने के बाद जो है उसने लोगों को तकलीफ भी दी होगी, उसने लोगों को सताया होगा, किसी को चिढ़ाया होगा, किसी का हक मारा होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी के साथ नाइंसाफी की होगी, किसी का जो है माल नाहक छीना होगा। उसके नेक अमाल के बावजूद उसके पास नेक अमाल के पहाड़ होंगे, और उसने जिसको सताया है क़यामत के दिन उसको लाया जाएगा, उसके नेक अमाल से लेकर उसको दे दी जाएगी। ऐसा करते कर जिनको उसने सताया है, जिनके साथ उसने नाइंसाफी की है, उसकी पूरी नेकियां जो है उन सारे लोगों मजलूम लोगों को जो बांट दी जाएगी और पूरा नेकियों का जो हकीर बन जाएगा। अगर फिर भी हिसाब किताब बराबर ना हो तो जो मजलूम थे, जिन पर जुल्म किया गया था, जिनका उसने हक माना था, उनके गुनाहों का बोझ उसके सर पर डाला जाएगा। फिर वो बंदा जो क़यामत में बहुत सारी नेकियों के साथ हाजिर हुआ था, गुनाहों के साथ जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये तीसरी बहुत बड़ी खराबी हमारे माशरे में, सोसाइटी में पाई जाती है, हुकूक इबाद का ख्याल नहीं रखा जाता। हम जो है लेके हम नमाज पढ़ने को नेकी समझ लेते हैं, हम जो है अच्छे सदका व खैरात करने को हम अच्छा काम समझते हैं, फराइज नेकियों में शामिल है, बड़ी इबादत में शामिल है। इन सारे अल्लाह के हुकूक के साथ साथ बंदों के हुकूक भी हैं, और बंदों के हुकूक बंदों से माफी के बिना जो माफ नहीं होते। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी का नाहक माल खाया है, किसी के साथ नाइंसाफी की है, तो आज अभी मौका है, अब जाइए उनसे माफी मांगिए, उनसे जो है अपनी गलती की जो है उनके लिए उनसे जो अपील कीजिए, आप उनसे दरख्वास्त कीजिए, उनसे गलती हुई उनकी गलती की माफी की तलाफी कीजिए। आपने जब तक कर रहा आपके हुकूक इबाद जो है अदा नहीं होते, आपकी जो नेक अमाल जो पूरे नहीं होते। चौथा हमारा जो बहुत बड़ी जो खराबी है, रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों को खराब करना, रिश्तों को तोड़ने वाला जो है अल्लाह ताला उसके सारे कुछ अमल बर्बाद कर देंगे। आज देखिए छोटे छोटे बातों पर, मामूली से मामूली बातों पर जो है इंसान जो रिश्तों को तोड़ देगा। सालों साल गुजर जाते, दोस्त सगे भाइयों में जो बातचीत नहीं होती, जायदाद को लेकर, बंटवारे को लेकर, मीरास को लेकर बहनों का हक मारा जाता है, अब भाइयों के हक को दबाया जाता है। कभी छोटी छोटी बात पर खास और शादी ब्याह के मौके पे आप देखोगे कि यहाँ तक के शादी का कार्ड ना पहुंचाने पे जो है लोग रिश्ते तोड़ डालते हैं, शादी का खाना अच्छा ना होने के बिना पर लोग जो है रिश्तों को खराब कर डालते हैं। हमें जो है अच्छा खाना नहीं दिया गया, हमें जो है मेहमानों के साथ नहीं बुलाया गया, हमें जो है बहुत इज्जत के साथ इकराम के साथ हमें इज्जत अफजाई नहीं की गई। तो इन सारी वजूहात की बिना पर जो है लोग रिश्तों को तोड़ डालते हैं, रिश्तों को खराब कर डालते हैं। तो रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों को खराब कर देना, इससे भी जो है आमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के पिछले सारे अमल को खराब कर डालता है। हमारे कई सारे अमाल ऐसे हैं जो नेकियों को बर्बाद करने वाले हैं। हमें ऐसा करना कि हमारे कुछ अमाल जिंदगी में ऐसे होने चाहिए जिसका ताल्लुक सिर्फ हमसे और हमारे रब के साथ हो। कुछ अमाल ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ हमें मालूम हो, हमारे रब को मालूम हो, इखलास के साथ, इल्लाहियत के साथ। अब मुकात वालों का वाक़या देखिए, तीन लोग हैं, सफर में निकलते हैं, बरसात होती है, कार में जाके पनाह लेते हैं, कार में जाके छुप जाते हैं, पनाह लेते हैं, ऊपर से बड़ा सा पत्थर आता और कार के दामने को ढक देता। लोग कहते, उनके दिल में बात आ गई, चलो हम अपने नेक अमाल के जरिए अल्लाह से दुआ करते हैं। हमने जो भी नेक अमाल पूरी जिंदगी में हमने जितने भी नेक अमाल किए हैं, अपने उन नेक अमाल के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। बहुत मुमकिन है, हो सकता है कि हमारे उन नेक अमाल के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दे। उन तीन लोगों ने अपने नेक अमाल का तज़किरा किया था कि ऐ अल्लाह, मैं अपने माँ बाप का जो बड़ा फरमाबरदार था, मेरे बच्चे भी थे, मेरे माँ बाप भी थे, मैं जब भी जो घर पे आता था रात में सबसे पहले अपने माँ बाप को जो है दूध भर के जो गिलास दिया करता था। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं, पहले मैं माँ बाप के पास जाता, उनको जो है उनका जो है उनका हक अदा करता, उसके बाद जो है बच्चों के पास जाता। एक रात में घर से लेट पहुंचा, ताखिर से पहुंचा, देखता हूँ कि माँ बाप सोए हुए हैं। अब मैं माँ बाप के पास खड़ा रहा, पूरी रात दूध का गिलास लेके खड़ा रहा कि माँ बाप उठेंगे, वालिदैन उठेंगे तो उनको दूध का गिलास पेश किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस नेकी के
ذریعے وہ دعا کرتے کہ میں تو اللہ رب العالمین میں نے جو ہے ایک عمل خالص تیرے لیے کیا تھا، صرف اور صرف تیری رضا مقصود تھی، صرف اور صرف تیری خوشنودی مقصود تھی، اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا دلا دے۔ وہ پتھر تھوڑا سا جو ہے سرک جاتا، ہم دروازہ تھوڑا سا کھل جاتا، دوسرا بندہ دوسرا شخص وہ بھی دعا کرتا کہ اے اللہ میری زندگی میں ایک لڑکی تھی، میری کزن تھی، میری چچا زاد میں میری چچا کی جو وہ لڑکی تھی، وہ میں نے اس کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ زنا کاری کا ارادہ کیا تھا، ایک مرتبہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، میں نے اس سے مطالبہ کیا، میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی میرے ساتھ غلط کام کرو میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ وہ لڑکی قریب آئی، اس نے کہا اللہ کو خوش خوف کرو، یہاں کوئی نہیں ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اللہ کو دیکھ رہا، ذرا اللہ کو تو خوف کرو، اللہ سے ڈرو، میرے عزتوں کو نہ کرو۔ آپ یہ جملہ سننا تھا کہ وہ شخص وہ بندہ جو ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف جاگا، اس کے دل میں جو ہے اللہ کا خوف جاگا، اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے واسطے تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرتا کہ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل خالص تیرے لیے کیا ہے تو ہم اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے۔ دروازہ تھوڑا سا اور جو ہے وہ سرک جاتا۔ تیسرا بندہ بھی دعا کرتا کہ اے اللہ میرے پاس ایک غلام تھا، میرے پاس ایک چرواہا تھا، بکریوں کو چلاتا تھا، ایک روز جو ہے وہ چلا گیا، اپنی بستی چلا گیا، اس کا کچھ مال میرے پاس باقی تھا، اس کی کچھ اجرت میرے پاس باقی تھی، اس کے اس مال کو اس کی اس اجرت کو میں نے جو ہے بزنس میں لگایا، تجارت میں لگایا، سالوں گزر گئے، اس کی تجارت میں اس کی تجارت میں اضافہ ہوا، اس کے بچے ہوئے مال سے اس کی تنخواہ سے میں نے جو بزنس شروع کیا تھا اس بزنس میں جو برکت ہوئی اور وہ آگے چل کے بہت بڑے پیمانے پہ اس کا بزنس پھیلا۔ وہ بندہ سالوں بعد آتا ہے، اپنے مالک کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے مالک میرے کو میرے جو تنخواہ تھی، میرا جو حق تھا وہ حق مجھے دے دو۔ وہ مالک کہتا ہے کہ پورا سامان دے رہا ہے، یہ پوری جائیداد تیری، یہ بکریاں بھیڑ یہ گائیں ساری چیزیں تیری ہیں۔ وہ غلام کہتا ہے مالک مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں تو اس لائق نہیں تھا، اتنی دولت تو میں نے نہ چھوڑی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے تیرے، تیرے مال کے ذریعے میں نے، تیری تنخواہ کے ذریعے میں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو تیرے حوالے ہے۔ وہ بندہ اس عمل کے ذریعے اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے اور یقیناً میں نے یہ عمل خالص تیرے لیے ہی کیا ہے، اگر کچھ اس عمل کو پسند کرتا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے، اگر دروازہ پورا کھل جاتا وہ اس مصیبت سے جو آزاد ہو جاتے۔ تو انسان کی زندگی میں ایسے اعمال ہونے چاہیے، ایسے اعمال کی کثرت ہونی چاہیے کہ انسان اس کا وہ عمل اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ بہت زیادہ شہرت کرنے کی خواہش رکھنا، بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو ریاکاری کا دکھاوا کا جو ہے مدعا بنا لینا، کہ انسان کی زندگی کو حقیر بنا دیتا ہے۔ دنیا میں تو شہرت مل جائے گی، دنیا میں تو عزت مل جائے گی، دنیا میں تو نام ہو جائے گا، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ ہم ان 3 لوگوں کا واقعہ دیکھیے کہ 3 لوگوں کا قیامت میں جو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، ایک وہ ہے جس نے جہاد کیا، جس نے جو ہے جنگ میں جو شریک ہوا اور اپنی پوری جو ہے جان کے ہاتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس نے لڑائی لڑی، بہادر کے ساتھ اس نے جنگ میں جو ہے مظاہرہ کیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں جہاد کیا تیری خاطر، تجھے راضی کرنے کی خاطر میں نے جہاد کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، دنیا میں تو شہرت چاہتا تھا، دنیا میں تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگوں نے شہید کہہ دیا، بہادر کہہ دیا، دنیا ختم، تیرا معاملہ ختم، تجھے دنیا والوں نے یہ کیا، دنیا ختم، تیرا معاملہ ختم، تجھے جہنم کے حوالے کیا جائے گا، اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ نے بہت مان دیا تھا، جس کو اللہ نے بہت زیادہ اہل خیر میں تو اس کو شامل کیا تھا۔ اللہ اس سے کہے گا بتا میں نے تجھے مان دیا تھا اور تجھے اہل خیر میں شامل کیا تھا، تو نے اپنے مال کا کیا استعمال کیا، تو نے اپنے مال کا کیا استعمال کیا، صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا۔ بندہ کہے گا اللہ کہ میں نے جو جہاں جہاں تیری رضا کی خاطر مال خرچ کیا جا سکتا تھا ان ساری جگہوں پہ میں نے جو ہے مال کو خرچ کیا تیری خاطر۔ میں نے مسجد بنوائی، میں نے مدرسے بنوائے، میں نے نیکیوں کے بہت سارے اعمال انجام دیے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے عمل کیا تھا کہ دنیا تجھے سخی کرے، دنیا تجھے جو ہے بہت جو ہے دیندار کہے، تو نے دنیا میں شہرت کرنے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ ہاں دنیا نے تجھے کہنا تھا، دنیا نے کہہ دیا، دنیا ختم، تیرا معاملہ ختم، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی ہوگی، جو قاری قرآن تھا،
इखलास से जो है वो कुरान की तिलावत करता था, पढ़ता था, पढ़ाता था, उस पर अमल करता था, अल्लाह कहेगा बता मैंने तुझे इतनी बड़ी नेमत दी थी, कुरान की नेमत से नवाजा था, आलिम दीन बनाया था, तूने इसका क्या इस्तेमाल किया? कहेगा अल्लाह मैंने लोगों को कुरान पढ़ाया, मैं कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया, अब मैंने जो जितनी नेकियों के काम हो सकते थे कुरान के ताल्लुक से मैंने सारी चीजें की। अल्लाह कहेगा तू झूठ कहता है, तूने तो इसलिए बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ा, तूने तो इसलिए कुरान की तालीमात को आम किया ताकि लोग तुझे कुरान का कारी कहें, ताकि लोगों की नजर में तेरी बड़ी इज्जत हो जाए, बड़ी शोहरत हो जाए। दुनिया ने कह रहा था, दुनिया ने कह दिया, आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं, आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं। उस रियाकारी ने, उस दिखलावे ने, उस शोहरत तलबी ने उन तीन लोगों के अमाल को जो है आखिरत में बर्बाद कर दिया। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह की फज़ल से, अल्लाह की तौफीक से नेक कामों में बहुत आगे रहते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिनको करने की वजह से कुछ लोग बहुत बार वो जानबूझकर इसको अंजाम देते हैं, कुछ लाइक इसका इर्तिकाब करते हैं। तो हमारे बहुत सारे अमाल ऐसे हैं कि नेकियों के बावजूद, नेकियों के ज़ख़ीरे के बावजूद जाने अनजाने में हमसे वो गलतियां हो जाती और वो नेक अमाल जो है आखिरत में हमारे कोई काम नहीं आते। तो बहुत सारी जो हमारे दरमियान ऐसी बुराइयां, ऐसी गलतियां मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारे नेक अमाल हमें आखिरत में फायदा नहीं पहुंचाते। हमें सबसे पहले चीज देखी शिर्क का इर्तिकाब करना, ये अमाल को बर्बाद कर देगा। ताबीज़ पहनना, गैरुल्लाह के कसम खाना, ये सारी ऐसी चीजें मुआशरे में बहुत ज्यादा आम है, मुसलमानों के दरमियान ये सारी चीजें आम है। इससे दूर रहना, तौहीद का मतवाला बनना, अकेले अल्लाह की इबादत करना। शिर्क ऐसा अमल है जो पिछले सारे नेक अमाल को जो बर्बाद कर देता है। दूसरा हमने रियाकारी को देखा कि रियाकारी वो अमल है कि इंसान नेक अमल करता है, अच्छे अमाल करता है, पैसे खर्च करता है, दौलत खर्च करता है, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त देता है, बल्कि अपनी जान तक की कुर्बानी दे देता। उसके बावजूद दिल में रियाकारी की वजह से, दिल में दिखलावे और शोहरत तलबी की वजह से रब्बुल आलमीन जो है उसके सारे अमाल को जो बर्बाद कर देता। तीसरा हमने देखा कि हुकूकुल इबाद, कि बंदा जो है नमाजों का पाबंद है, बंदा तहज्जुद का पाबंद है, कुरान की तिलावत करता है, आप लोगों के अल्लाह ताला की जितनी इबादत की अक़साम हो सकती है उन सारी चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करता है। घर में उसके मामला गड़बड़ है, घर में उसके मामला सही नहीं है, यहाँ बताता है अल्लाह से रो कर दुआ करता है, घर जाता है अपनी बीवी से झगड़ा करता है, यहाँ पर आता है लोगों से बड़े खुश अखलाकी के साथ मिलता है, घर में जाता है बच्चों को मारता है, बच्चों को सताता है। अब तो एक इंसान उन नेक अमाल को करता है, बंदों के हुकूक का ख्याल नहीं रखता, अल्लाह के हुकूक को अदा करता है, बंदों के हुकूक को मांगता है, लोगों के हक को छीनता है। तो ऐसा इंसान जो अल्लाह के हुकूक अदा करता है, बंदों के हुकूक को फरामोश कर देता है, तो ऐसा इंसान आखिरत में मुफलिस होगा, गरीब होगा, नेकियों के पहाड़ होने के बावजूद उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो तीसरी बहुत बड़ी बुराई जिससे हमें बचना है वो हुकूकुल इबाद की जो है ताल्लुक से कि हमें हुकूकुल इबाद को अदा करना है। चौथी चीज हमें रिश्तों को जोड़ना है, हमें मामलात को जोड़ना है। बहुत मरतबा ऐसा होगा कि छोटी छोटी गलतफहमी की वजह से मामला बिगड़ते हैं। हम आगे बढ़कर भले हमारी गलती ना हो, भले हमारी तरफ से कोताही ना हो, गलती सामने वाले की है, वो आगे नहीं बढ़कर ना बढ़े। अल्लाह ने मुझे जो तौफीक दी है मैं आगे बढ़ता, मैं आगे चल के अपनी गलतियों को जो है माफ करता, मैं जो है आगे चल के अपनी गलती को कबूल करता, मैं रिश्तों को जोड़ने वाला बनता। अल्लाह ने रिश्तों को जोड़ने की बात कही है, अल्लाह ने मामलात को जो जोड़ने की बात की, सुलह रहने की बात की है। मैं अल्लाह के हुक्म पर अमल करूंगा, मैं इन सारी चीजों को करके अपने अमाल को बर्बाद नहीं करूंगा, रिश्तों को तोड़ के अपने अमाल को खराब नहीं करूंगा। तो चौथी चीज जिससे हमारी नेकियां खराब हो सकती वो रिश्तों को तोड़ने वाली, वो रिश्तों को तोड़ने की बजाय रिश्तों को जोड़ने वाला बनना है। एक बहुत पांचवी चीज हम देखते हैं, एक बहुत आसान चीज है वो कि हम अपनी नीयत की इस्लाह करें। जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जिए, घर में हम हैं, हम वालिदैन के साथ हैं, हम बस हमारा वालिदैन की देखभाल करना, बच्चों की परवरिश करना, खिलाना पिलाना इंसान की जिम्मेदारी है। इंसान काम पे जाना, जॉब पे जाना, काम करना, इस दुनिया की जिंदगी गुजारना। जो फराइज है उन फराइज की पाबंदी के साथ साथ उसके जो दुनिया के जो दीगर अमाल है वो उन अमाल में अपनी नीयत की इस्लाह कर दे। मिसाल के तौर पर एक बाप है, उसकी जिम्मेदारी है घर वालों को जो है खिलाना है, पिलाना है, उनके जो है सारी जरूरतों को पूरा करना है। अब अगर उसके दिल में ये नीयत
आ जाए, मैं इसलिए खिलाऊंगा कि मेरा बच्चा सेहतमंद रहे तो बेहतरीन तरीके से नमाज पढ़ पाएगा। मैं इसलिए घर में जो है अच्छे तरीके से अच्छा इसलिए कर पाऊंगा कि बच्चे बड़े होकर जो है दीन के जो है खादिम बनेंगे, दीन के जो है रखवाले बनेंगे। मैं इसलिए घर वालों की जो है रखवाले करूंगा कि जो है मेरे घर वाले जो है दीन के निगहबान बनेंगे, दीन के ऊपर अच्छे तरीके से अमल करने वाले बनेंगे। माँ बाप को जो है हुकूक अदा करना इंसान की जिम्मेदारी में शामिल है। अगर वो ये समझ के करता है कि हाँ माँ बाप ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, आज मुझे इस लायक बनाया, मैं उसको जो अपने ऊपर बोझ समझने की बजाय उनको जो अपने जो है अपनी जन्नत में जाने का जरिया समझता हूँ कि कहाँ से बहुत सारे लोगों को आप देखो, खास तौर से आपके माशरे में जो नौजवान तबका है 30 साल 35 साल, उनके माँ बाप जो 60-70 साल के बिस्तर पे पड़े हुए हैं, जरा भी ख्याल नहीं करते, जरा भी ख्याल नहीं करते। वो बाप जो है बिस्तर पे पड़ा हो दवाइयों के ना होने की वजह से तड़पता रहता है। अब माँ अपने बेटे को जो है जवान बेटे की निगाहों हसरत भरी निगाहों से उसको देखता रहता है और वो बेटा जो है अपनी जिंदगी में मस्त है, वो नौजवान जो है अपनी जिंदगी में मस्त है और वो बेचारा बूढ़ा बाप जो है उसको हसरत भरी निगाहों से देखता है। वो इसलिए उसकी खातिरदारी करे कि उसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मैं उसके फरमा बरदारी करना, मुझे जन्नत मिलती, मुझे नेकियां मिलती, उसको अपने पर बोझ न समझे। तो बहुत सारे अमाल ऐसे हैं, अगर हम उसमें अपनी नीयत भी इस्तेमाल कर ले तो वही अमल जो हम अमल में करना ही है, अगर हम उसमें जो है नेकी की नीयत ना भी करें तब भी हमें वो करना ही है। बस नीयत के बदलने की वजह से हमारे पूरे 24 घंटे का जो रूटीन है, हमारी जो दिन भर की जिंदगी है, हर अमल हमें जो है नेकियों के करीब कर सकता है, नेक अमाल के करीब कर सकता है। तो मेरे भाइयों, दुनिया में एक इंसान को नेकियों का हरीस होना चाहिए। जो जन्नत की चाहत रखता वो नेकियों से दूर नहीं हो सकता, जो जहन्नम से आजादी की ख्वाहिश रखता है वो नेकियों से नेक अमाल से दूर नहीं हो सकता। नेक अमाल की कसरत कीजिए, नेक अमाल की जो है ख्वाहिश रखिए, जहाँ जहाँ जैसे जैसे छोटा ही अमल क्यों न हो, किसी से मुस्कुरा कर मिल लीजिए, सबका है, रास्ते से तकलीफदार चीज हटा दीजिए, आपके सबका है। जितना मौका मिले उतना जो नेकियों को करने की कोशिश करें, नेकियों के करने के साथ साथ उसको बचाने की भी फिक्र कीजिए, दिल में इखलास पैदा कीजिए, खालिस अल्लाह के नेक अमाल को अंजाम दीजिए। इंशाअल्लाह ये छोटे छोटे अमाल हमको जो है जन्नत में दाखिल, हमारे लिए जन्नत में दाखिल का जरिया बनेंगे, जहन्नम से आजादी का जरिया बनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक हम जिंदा रहे नेक अमाल की कसरत करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। जब तक हम जिंदा रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो है ईमान पर बाकी रखे, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो।